class here. Okay. So you can just check the question answers from there. I have ticked those questions which you have to just write down in your notebooks. Okay. So on Saturday, I will check your lesson first of geography section. So just give a proper name in the notebook. Firstly, you have to write the name of the book, that is geography. After that, chapter first, you have to start. Yes, Pallavi, no need to laugh, beta. I think nothing is going on as entertainment here. Sit properly in the class and be attentive. If you have joined the class, be attentive for 35 to 40 minutes. Is it fine? Don't create disturbance in between. Everyone switch on your cameras. And nobody will just see towards the device. सिर्फ डिवाइस की ही तरफ देखते नहीं रहना है. आपके पास नोटबुक्स हैं, जो भी करवाया जाएगा that you have to just read, you have to write, you have to just listen properly what the teacher is saying. So मैं बता रही थी that chapter first आपने complete कर लेना है geography का, and on Saturday I will check your notebooks. Fine. Questions should be written with your black gel pen and answer with your blue gel pen and properly. Very short जो question answers मैंने आपको करवाए थे वो भी आपने copy पे properly करने हैं. ठीक है? NCERT के तो करने ही हैं, साथ में जो very short मैंने करवाए हैं that you have to also write on your notebooks properly. Fine. So today we will do chapter 2 of geography, and the name of the chapter is, let me start. Yes, forests and wildlife resources. क्या नेम है आपके चैप्टर का? Forests and wildlife resources. बहुत ज्यादा चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, बहुत ज्यादा चीजें हमें एनिमल से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, है ना? सो गिव मी 5 एग्जांपल्स व्हिच यू विल गेट फ्रॉम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ. एनीबॉडी एल्स? With forest, bamboos. Ma'am, bamboos, fruits. Fruits, trees. Wood. Rubber. A lot of things. अपने surrounding में देखेंगे आप. Yesterday I also give you examples that just I have kept this book. We depend for this on the forest. If I am sitting here with the table, okay, मैंने अपना डिवाइस जो है वो टेबल पे रखा है. क्या है ये? फर्नीचर है. फाइन. बहुत ज्यादा चीजें, मतलब हम 90% से ज्यादा जो है वो अपने जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंडेंट. 90 भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ, मतलब हर एक चीज के लिए हम नेचर पर ही डिपेंड है, रिसोर्सेज पर ही डिपेंड है. विदाउट दिस वी कांट सर्वाइव. ओके, सो वी विल जस्ट रीड अबाउट इट टुडे. सो फर्स्टली वी विल डू वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. सो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे. With which living beings man shares this planet? Write down. Firstly, give heading, very short answer type questions. Very short answer type questions. आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क्स में आएंगे. सो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत ही मतलब डीपली स्टडी करना है ताकि आपका जो 1 भी मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो ना छूटे. ठीक है? तो ये आपने फेयर कॉपी पे भी जरूर लिखना है. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विद which living beings first letter of the sentence must be capital? With which living beings? LIVING. Everybody will write. I will check in between your notebooks. And at that time, nobody will give me excuse that, ma'am, I was not writing. I just joined the class. Yuvika Sharma, kindly switch on your camera, bache.
Yes. Everyone. With which living beings, living living beings, beings beings, comma, man shares this planet? Sign of interrogation. इस प्लैनेट पे हमारे साथ और कौन कौन चीजें होती हैं? मैन जो है वो इस प्लैनेट को और किन लोगों के साथ जो है वो शेयर करता है? सो आंसर इज microorganisms, plants and animals. MICRO micro डैश लगा के लिखेंगे, organisms ORGANISMS, plants 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 and animals ANIMALS. Written, children? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. Second question. How much percentage, very important question from the final examination point of view. How much मतलब फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके रहते हैं, मतलब विदाउट सोशल साइंस यू नेवर थिंक अबाउट टू क्रैक एनी एग्जाम. आप कुछ भी बनना चाहते हो, व्हाटएवर, विदाउट सोशल साइंस. कोई ये कहे कि मुझे तो मतलब सोशल साइंस अच्छी नहीं लगती है, मुझे हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है, सिविक्स अच्छी नहीं लगती है, सो यू कांट सर्वाइव. अगर आपको कोई भी टेस्ट क्रैक करना है, यस डॉक्टर बनना है, देन इट्स ओके, पर फिर भी ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना? कहीं ना कहीं हम जो है वो अपनी सोशल जो साइंस है इसके बिना नहीं मतलब आगे कुछ भी कर पाते हैं. तो हर एग्जाम में आप एनडीए ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, आप छोटे से छोटा टेस्ट से लेके मतलब हायर यूपीएससी के टेस्ट ले लीजिए, आपको सोशल साइंस का नॉलेज होना ही चाहिए. ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं हमें बहुत लाइट लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप किसी एग्जाम की मतलब बाद में प्रेपरेशन करते हो तो हमें पता चलता है कि काश हमने 9th 10th जो आपका 6th to 10th तक का जो सिलेबस रहता है सोशल स्टडीज का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी टेस्ट को क्रैक करने के लिए. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें इसीलिए मैं कॉपी पे लिखवा रही हूँ, कल को आपको हेल्प मिल जाएगी. कल को आपने आफ्टर +2 किसी भी टेस्ट की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको मिल सकती हैं. ठीक है, सो हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्पीशीज, spellings must be correct. Nobody will think that this is social science so we can just write wrong spellings. No, मतलब जब स्पेलिंग आती है तो रॉन्ग लिखने का कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, लिखो ही सही, है ना? कोई भी, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ इंग्लिश जो है वो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हैज भी लगा सकते हैं, हैड भी लगा सकते हैं, समझ में आना चाहिए. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही गलत थिंकिंग है, क्योंकि जहां पे इज लगेगा वहां इज ही लगेगा. शी इज गोइंग टू स्कूल तो वो इज ही लगेगा, शी वॉज गोइंग टू स्कूल कभी नहीं होगा, उसका टोटली मीनिंग चेंज हो जाता है. तो सोशल साइंस में भी ये थिंकिंग बिल्कुल नहीं रखनी है कि स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाती हैं तो मार्क्स नहीं कटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, गलत गलत ही है, चाहे उसे आंखें बंद करके बोलो चाहे खोल के बोलो, गलत गलत ही है. सो स्पेलिंग्स कोई भी गलत नहीं लिखेगा. परसेंटेज PERCENTAGE परसेंटेज ऑफ स्पीशीज SPECIES species of the living organism of the living living organism GANISM organism is found in India. Is found in India, sign of interrogation. I repeat again the question, how much percentage of species of the living organism is found in India? So write down answer. 2 years before ये question जो था वो आपका आया हुआ था, about 16 lakh. About 16 lakh, LAKH, full stop. Just come to the next question. How many species of fauna are found in India? How many species of
How many species of fauna, F-A-U-N-A, fauna, are found in India? Sign of interrogation लगा लीजिए. $81,000. Written, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next Yes, question. Ma'am. How many species of flora are found in India? How many species of flora are found in India? How many species of flora are found in India? And the answer is about 47,000. 47,000. Written. Okay. Next question. How much flora of India? How much flora of India is on the threatened list? How much flora of India is on the threatened मतलब जो खतरे की कगार, मतलब ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं जो विलुप्त होने वाले हैं. ठीक है. थ्रेटेंड, THREAT लिखिए स्पेलिंग, THREATENED. जब लॉन्ग स्पेलिंग आती है उसको ब्रेक करके लिखो. ठीक है. थ्रेटेंड, थ्रेट लिख लीजिए पहले, देन एन, देन एड, ENED, THREATENED, threatened list. Sign of interrogation. So write down the answer. 10% of wild flora, 10% of wild, WILD, wild flora, FLORA flora, and 20% of its mammals, and 20% of its mammals, MAMMALS. Next question. Name 2 animals on critical list. Name 2 animals on critical list. Name 1 animal. Just write down only one. Name 1 animal on critical list. And the answer is cheetah. 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 I repeat again all the questions. Kindly check. First is, with which living beings man shares this planet? And the answer is with microorganisms, plants, and animals. Second question, how much percentage of species of the living organism is found in India? So answer is about 16 lakh. How many species of fauna are found in India? That is 81,000. How many species of flora are found in India? About 47,000. Then, how much flora of India is on the threatened list? Answer is 10% of wild flora and 20% of its mammals. And the last one question, name 1 animal on critical list. That is cheetah. Have we done, children? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. One, Yes, ma'am.
वन क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, एक्सपैंड IUCN, फुल फॉर्म्स भी आपको पूछी जाती हैं, सो राइट डाउन एक्सपैंड IUCN, ये चारों लेटर्स कैपिटल ही आएंगे, IUCN. And the full form of IUCN is international. Write down international, inter लिखिए, then national. INTERNATIONAL, international. Union for, union, UNION, union for. Conservation of, conservation of, कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण करना, है ना। जब भी कोई चीज जो होती है हम कंजर्व करके क्यों रखते हैं, ताकि वो चीज जो है वो खत्म ना हो जाए, इसलिए कंजर्व करके रखते हैं हम किसी भी चीज को, ठीक है। तो सेम एज हमारा नेचर है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं, सो उसके बारे में है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन, CONSERVATION, conservation of natural, NATURAL, natural resources, 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 International Union for Conservation of Natural Resources. Done? Yes, ma'am. ma'am. एक क्वेश्चन मैं आपको ओरल पूछती हूँ ऐसे ही, which is the fastest land mammal? Which is the fastest land mammal? Yes, kindly raise your hand. Yes, Harsh, very nice. Give answer. I think your mic is off, bachche. Kindly switch on your mic firstly. Yes, ma'am. Ma'am, cheetah. Yes, well done, fine. Cheetah is the fastest mammal. Okay, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस चीज के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा बताती हूँ, आप जो है वो ज्योग्राफी जो चैनल आता है उसके ऊपर, डिस्कवरी चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाई जाती हैं, और जितना आप उसको देखोगे ना, लाइव देखोगे, वो चीजें आपको उतनी ज्यादा मेमोराइज रहती हैं, और आप उस चीज से और ज्यादा इंटरेस्ट आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो है वो एनहांस होता है। फाइन, सो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। नाउ कम टू द textbook question answer, and the first question is, write down what is biodiversity. What is biodiversity? BIODIVERSITY. What is biodiversity? Sign of interrogation. पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में, जैव विविधता, वही सारा सिलेबस है ये, है ना। सब कुछ आप पढ़ के आए होते हो छोटी क्लासेस में, बस ये होता है थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपैंड करके होता है, ठीक है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? साइन ऑफ इंटरोगेशन। व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइव्स? किसी भी स्पेलिंग में अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी फ्रीली, ओके। गलत नहीं लिखेगा कोई भी। Why is biodiversity important for human lives? जरूरी है हमें सब चीजें, हमें प्लांट्स भी जरूरी हैं, हमें ट्रीज भी जरूरी हैं, हमारे लिए इंसेक्ट्स भी जरूरी हैं, एनिमल्स भी जरूरी हैं, पेट एनिमल्स भी जरूरी हैं, हमारे लिए एयर भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी, हर एक चीज, जितनी भी वेराइटीज हमारी नेचर में है वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। What is biodiversity and why is biodiversity important for human lives? Sign of interrogation. Question has written everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, fine. So write down the answer. Biodiversity is a combination of
two words. Is a combination of two words. शगुन प्राशर, आपको मुझे कितनी बार इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी? काइंडली टर्न ऑन योर कैमरा एंड वंशिका डोगरा यू आल्सो. मतलब आप लोग क्या जाहिर करते हो इस चीज से कि आपको या तो फर्क नहीं पड़ता है या आप सुनकर अनसुना कर देते हो? क्या कर रहे हैं हम आपको अगर आपने कैमरा ऑन कर दिया है तो? कुछ पूछ ही लेंगे, क्या मतलब कुछ हो जाएगा? Don't make fool of others. Biodiversity is a combination of two words, full stop. Bio means life. Underline करेंगे life को. Bio means life. And diversity means variety. And diversity bio means life. life. Life, Yes, ma'am. जिंदगी. Yes. And diverse. And bio means life, L-I-F-E, life, and diversity means variety, V-A-R-I-E-T-Y. वेराइटी बोलते हो ना, आप कहीं पे भी जाते हो, शॉप पे जाते हो, आपने अपने लिए कुछ लेना होता है, शूज लेने होते हैं, तो आप बोलते हो कि वेराइटी दिखाइए हमें, है ना, ड्रेस दिखाइए तो हमें वेराइटी में दिखाइए. ठीक है. सो बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. फुल स्टॉप. This biodiversity is the, write down, this biodiversity is the, Please repeat. I'm not audible, children. Audible. Audible. Okay, turn off your mics, everyone. This biodiversity, now I'm audible. Yes, ma'am. इसको नहीं चल रहा. Okay. This biodiversity is the number and number, N-U-M-B-E-R, number and where found, F-O-U-N-D, found within, H-I-N, within a specified region. Within a specified region. R-E-G-I-O-N, रीजन मतलब क्षेत्र. जैसे आप देखते हो हिमाचल में, अगर आप देखो तो अगर आप यहाँ की बात करेंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे याक्स मिलती हैं? नहीं होती हैं. अगर आप कुल्लू जाओगे, स्पीति जाओगे तो उस तरफ आपको वो एनिमल मिलेगा. तो वो पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करता है, कहाँ पे कौन से प्लांट्स, कौन से ट्रीज, कौन से एनिमल्स, कौन से इंसेक्ट्स, कौन से वर्ड्स जो हैं वो आपको मिलते हैं. ठीक है. तो रीजन टू रीजन जो है वो बहुत ज्यादा वेराइटी आपको मिलती है. ठीक है. सो organisms found within a specified region, full stop. It refers to varieties of, कौन सी varieties हमें मिलती हैं? देखिए, it refers to varieties of varieties, varieties of plants, animals and microorganisms. सेम क्वेश्चन हमने शॉर्ट में भी किया था, है ना, कि हम किसके साथ, ह्यूमन जो बीइंग है वो किसके साथ अर्थ प्लैनेट को शेयर करता है? तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स.
It मैम refers. आपने ब्राइट के आगे क्या बोला? Okay बेटा, I will repeat again. It refers to, यहाँ तक लिख लिया सभी ने? It refers to varieties, varieties. It refers to varieties, varieties, varieties of plants, 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 comma, animals. Biodiversity is a combination of two words. Bio means life and diversity means variety. Life और variety को आप अंडरलाइन करेंगे. समटाइम 1 मार्क में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसका क्या मीनिंग है. तो ये आपको 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है. ठीक है. And this biodiversity is the number and variety of organisms found within a specified region. It refers to varieties of plants, animals, and microorganisms. Written, children? Yes, ma'am. Okay. Now give heading to this question. हेडिंग दीजिए. अब इसके नेक्स्ट वाली लाइन में लिखेंगे. हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमसे डेफिनेशन पूछी थी बायोडाइवर्सिटी क्या है. देन व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइव्स. सो राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Importance, IMPORTANCE, importance of biodiversity in human life. तो जल्दी लिखना बच्चों. Number 1. अब देखिए प्रेजेंटली आप देख रहे हो जिन लोगों को ऑक्सीजन लेवल जिनका लो हो रहा है या बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की हमारे पास नहीं आ गई है, तो क्या पैसे देकर लोग ठीक हो जा रहे हैं? मैम यस. एक्चुअल वेल्थ. जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनके लिए क्या जो मनी है दैट इज एक्चुअल वेल्थ. सांस नहीं आ रही है तो क्या पैसे देकर आप सांस ले सकते हो? नहीं ले सकते. एक्चुअल में जो हमारा वेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारी हेल्थ है, हमारा नेचर है, जिसे कि हमने क्या कर दिया है बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर. जिसे आप अवर बोलते हैं, इज आर लिविंग वेल्थ. अब ऑब्वियस ही बात है जब मैंने आर बोला तो ARE नहीं लिखना था. क्यों नहीं लिखना था? सेंटेंस में इज तो ऑलरेडी लग चुका है, तो हेल्पिंग वर्ब तो लगती है ना. बायोडाइवर्सिटी इज आर लिविंग वेल्थ. LIVING लिविंग वेल्थ. WEAL को चलाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? वे अपनी नेचर के ऊपर डिपेंड है, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे. ठीक है. सो नंबर 2 लिखिए. बायोडाइवर्सिटी हैज इकोलॉजिकल, ECOLOGICAL, इकोलॉजिकल, कॉमा, इकोनॉमिक. Kindly turn off your mic, everyone. Divyanshi, your mic is
note of. 2, biodiversity has ecological, economic, economic, economic and scientific importance. Biodiversity has ecological, economic and scientific importance. हिमाचल में सेब उगता है, बहुत ज्यादा एप्पल होता है यहाँ पे. पंजाब में आपको गेहूं मिलती है, राइस मिलते हैं, हरियाणा में यूपी चले जाओगे आपको शुगर केन बहुत ज्यादा मिलेगा, वेस्ट बंगाल जाओगे आपको जूट बहुत ज्यादा मिलता है. ठीक है, तो अगर ये वेराइटीज नहीं होती, सारी जगह एप्पल्स ही होते, तो क्या पॉसिबल था हम लोगों का सरवाइव कर पाना? हमें तो सब चीजों की जरूरत है ना? कोई एप्पल से चाहिए, शक्कर भी चाहिए, तो ये सारी वेराइटीज जो है एक मैं पर्टिकुलर कंट्री की ही अभी तक बात कर रही हूँ. वेराइटीज हैं कि जो एप्पल है आपका शिमला में, आपका कुल्लू में, देखोगे तो कांगड़ा में एप्पल्स नहीं होते. हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि यस मैम हो जाते हैं एप्पल्स, पर वो सिर्फ बेटा एक मतलब उस तरीके का एप्पल आपको नहीं मिलेगा जो आपको किन्नौर में मिलेगा, जो आपको शिमला में मिलेगा. वो वाला एप्पल यहाँ के एटमॉस्फेयर में नहीं हो सकता, दैट इज नेचुरल. ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आप देखते हो कितने यहाँ पे मैंगोज कितने ज्यादा होते हैं, तो ये चंबा में आपको नहीं मिलेंगे. तो ये क्या है? वेराइटी ही तो है ना? सो biodiversity has ecological, economic and scientific importance. Written, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Number 3. Species of many kinds. Species of SPECIES. Species of many kinds. Many, M-A-N by many kinds. K-I-N-D-S kinds. Develop, DEVELOP, develop life support system. हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं ये सारी चीजें. कुछ लोगों ने पेट एनिमल्स रखे होंगे, कुछ ने जैसे हैंड्स रखी होंगी, सेल करते हो, आपकी इनकम होती है, उस इनकम से आप जो है आप है ना मतलब कुछ और चीजें परचेज करते हो. तो हर इंसान जो है एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है. जैसे आपका स्कूल है, स्कूल में आप एजुकेशन लेने जा रहे हो, लेकिन अगर आप घर पे हो तो हो सकता है कि स्कूल में होंगे, अगर उनका नहीं है तो लाइफ जो है हमारी जो लाइफ है उसको भी सपोर्ट करती है ये सारी वेराइटीज. स्पीशीज ऑफ मेनी काइंड्स डेवलप लाइफ सपोर्ट सिस्टम. सपोर्ट की स्पेलिंग प्लांट इकोसिस्टम. These affect climate and ecosystem. These affect 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 climate and climate 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 and ecosystem ECOSBY-STEM. क्लाइमेट और कुछ लोग क्लाइमेट और जो एटमॉस्फेयर होता है उन दोनों को सेम ही बोल देते हैं. वेदर और क्लाइमेट को सेम बोलते हैं. तो वेदर एंड क्लाइमेट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, क्लाइमेट जो है वो सडन चेंज नहीं होता है. क्लाइमेट कुछ चेंज होने में काफी, दोनों का क्या है बिल्कुल अलग है. शिमला में जाओगे, कितनी भी गर्मी में जाओगे, वहां की जो एयर होगी, वहां का जो मतलब वो रहेगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू कांगड़ा. धर्मशाला में अगर आप ऊपर जाते हो, कितनी भी गर्मी में जाओ, वहां का बिल्कुल अलग है ना. जैसे आप मेन कांगड़ा में पहुंच जाते हो, क्लाइमेट टोटली चेंज हो जाता है ना. तो वेदर एंड क्लाइमेट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स.
सो लास्ट लिखिए, इट प्रोड्यूसेस क्रॉप्स डाइवर्सिटी। यस, क्लाइमेट चेंज होगा, हमारा डिफरेंट